A very good morning to all of you. Today we are into the part 2 of the discussions on the Supreme Court case law, CIT Trivandrum versus Messrs Anand Theatres. You know, the reading of the case law is very important. Most of the time, we just rely upon the gist of a case law. And when we rely upon the gist of a case law, we lose track of the actual reasons which were behind the decision that were made by the Supreme Court or by any other court. And we remain confused about the matter as such. Moreover, being human beings, we communicate through language. And therefore, it becomes all the more important that if a decision has been taken, then we must know through the language as to how that decision was being arrived at. That is why the reading of the case laws and understanding of case laws is important. Moreover, reading of the case law also helps us to refine our language of the law. Whenever we are writing orders, we need to, or when we are drafting an order, we need to have a clear idea about what to write, what not to write, how to write. And case laws are living examples of that, because the judgments are made by those experts who are virtually at the top of the legal paraphernalia or the legal hierarchy, you can say, as far as the knowledge of law is concerned. Therefore, reading of the case laws in their entirety, not just by the ratio decidendi, not just by the head note, but the actual text of the law. Reading of that is very, very important. And therefore, whatever time we are spending on reading the law, we should think that it is a time well spent. Because we are not rattafying anything, or we are not just making notes or making points. We are moving in the realm of thinking, moving in the realm of thought. We are trying to understand the thought processes of a lawmaker or a law decider or a law judge, and therefore making ourselves even better at our jobs of an assessing officer or our job for maker of a draft for the assessing officer. When we are inspectors or when we are senior TAs, sometimes even then, when we are good at our job, we will be asked to make drafts. Even stenographers are making drafts nowadays, and those stenographers who are good at their work, virtually they have been seen to take over the work of the officer himself, in the sense of the fact that the draft that they make becomes the final draft. So with those words, moving forward, and कल हमने ये पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कौन कौन से केस लॉज में क्या क्या कहा गया है. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्कस किया था. उसके बाद आते हैं सबमिशंस पे. ऊपर दिए गए जजमेंट्स के आधार पे जो रेवेन्यू के लर्नेड काउंसिल थे और एसएससी के जो लर्नेड काउंसिल थे, उन्होंने इलैबोरेट सबमिशन किए हैं. इलैबोरेट यानी विस्तृत. मिस्टर एस गणेश, जो कि लर्नेड सीनियर काउंसिल है एपेलेंट के, जो कि रेवेन्यू है, उन्होंने सबमिट किया कि सबसे पहली दलील उन्होंने दी कि सेक्शन 32(1) जो है वो क्लियर फर्क कर रहा है एक बिल्डिंग के बीच में जो कि बिजनेस के लिए यूज हो रही हो
और एक प्लांट मशीनरी के बीच में जो कि उसी पर्पस के लिए यूज हो रही हो, यानी बिजनेस पर्पस के लिए, यानी बिल्डिंग और प्लांट के बीच में 32(1) सेक्शन के द्वारा फर्क किया गया है। अ बिल्डिंग दो स्पेशली डिजाइंड फॉर यूज इन ए पर्टिकुलर बिजनेस, हालांकि बिल्डिंग जो है एक खास तौर पे डिजाइंड होगी एक खास बिजनेस के लिए, लेकिन वो बिल्डिंग होना रुक नहीं जाती है, वो बिल्डिंग रहती है। एवरी बिल्डिंग जो कि एक खास बिजनेस में यूज हो रही है, उसमें कुछ खास फीचर्स होंगे, कुछ खास लक्षण होंगे जो उस बिल्डिंग को उपयुक्त बनाते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। हर बिल्डिंग में कुछ खास लक्षण हो सकते हैं। फर्दर, विदाउट बिल्डिंग द बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन, और बिल्डिंग के बिना बिजनेस चलाया नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि बिल्डिंग प्लांट हो गया, नहीं तो हर बिल्डिंग प्लांट बन जाएगी और जो फर्क करने वाली लाइन है, जो विभाजित करने वाली लाइन है प्लांट और बिल्डिंग के बीच में, वो मिट जाएगी, वुड गेट ऑब्लिटरेटेड, जो कि परमिसिबल नहीं है। सेक्शन 43(3) जो है वो प्लांट को डिफाइन करता है इंक्लूसिव टर्म्स। इंक्लूसिव टर्म्स का मतलब ये है कि इसमें ये चीजें शामिल हैं और भी चीजें हो सकती हैं। हर आइटम जो सेक्शन 43(3) में शामिल किया गया है वो चल आइटम है या चलने वाला आइटम है। सेक्शन 43(3) जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी को कॉन्टेम्पलेट नहीं कर रहा है, जैसे कि एक बिल्डिंग, और इसलिए वो बिल्डिंग को प्लांट कंसिडर करने की बात नहीं कह रहा है सेक्शन 43(3). इजिस्डम जेनरिस और नॉस्टर सोर्सेस प्रिंसिपल्स इस कनेक्शन में रेलिवेंट हैं। इस प्रिंसिपल को हम लोग अगले उसमें लेक्चर में इसको थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। सेक्शन 32(1)(2) जो कि सेक्शन 32(a) और जो अपेंडिक्स है इनकम टैक्स रूल्स के, वो प्लांट और मशीनरी की बात करते हैं जो कि इंस्टॉल्ड है, और बिल्डिंग की जब बात करते हैं तो बिल्डिंग खड़ी की गई है। इससे भी बिल्डिंग और प्लांट और मशीनरी के बीच में फर्क सामने आ जाता है साफ तौर पे। सेक्शन 32(1)(5) बिना किसी इधर उधर की बात कहे एक मत से कहता है, एक मत से प्रोवाइड करता है कि जो न्यू बिल्डिंग है जिसको कि एक होटल के रूप में यूज किया जा रहा है, उसको एक बिल्डिंग माना जाएगा डेप्रिसिएशन के पर्पज से। 32(1)(5) जो प्रोविजन था, ये पहले था, उसके अनुसार डेप्रिसिएशन का रेट बिल्डिंग के लिए दिया गया था जिसको होटल के रूप में यूज किया जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एक बिल्डिंग जिसको कि स्पेशली डिजाइन किया गया है और कंस्ट्रक्ट किया गया है होटल के यूज के लिए, फिर भी वो एक बिल्डिंग है डेप्रिसिएशन के पर्पस के लिए, वो कोई प्लांट नहीं बन गई, क्योंकि सेक्शन 32(1)(5) में भी उसको प्लांट घोषित नहीं कर दिया, उसको बिल्डिंग के रूप में एक रेट अलग से दिया गया है। सेक्शन 32(1)(2)(a) और सेक्शन 33(1)(b)(b)(2) और अपेंडिक्स जो है वो बात कर रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड होती है एक ऐसे प्रेमाइसिस में जो होटल के रूप में यूज हो रहा है, और इस प्रकार से वो क्लियरली एस्टैब्लिश कर रही है कि होटल एक प्रेमाइसिस है, और होटल का प्रेमाइसिस जो है वो प्लांट या मशीनरी नहीं है, बल्कि वो केवल एक बिल्डिंग है। और वही सिद्धांत एक थिएटर की बिल्डिंग पर भी अप्लाई करेगा। सेक्शन 32(1)(4) क्लियर कर देता है कि जो स्ट्रक्चर्स या बिल्डिंग्स फैक्ट्री एक्ट के कंप्लायंस में भी बनाए गए हैं वो भी बिल्डिंग है डेप्रिसिएशन के पर्पज से, यानी फैक्ट्री की भी जो होती है वो बिल्डिंग होती है, वो के प्लांट नहीं होता है। उसके बाद श्री बीबी आहूजा जोसेफ वल्लभपल्ली जो सीनियर काउंसिल है असेसी की तरफ से, उन्होंने क्या सबमिट किया,
उन्होंने कहा कि जो जजमेंट्स के रेशो कोट किए गए हैं और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो जजमेंट है, उससे क्लियर हो जाता है कि ये जो शब्द हैं बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, जो सेक्शन 32(1) में इस्तेमाल किए गए हैं, वो एक दूसरे से अलग हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी उनमें आपस में कोई कॉमन चीज नहीं है. It follows that a particular item could fall under both the heads, building as well as a plant, on functional test. और इससे ये बात फॉलो करती है कि कोई भी खास आइटम जो है वो दोनों हेड में आ सकता है, बिल्डिंग हेड में भी आ सकता है और प्लांट हेड में भी आ सकता है, अगर हम फंक्शनल टेस्ट को यूज करें. फंक्शनल टेस्ट मतलब कि क्या उसका फंक्शन है. और असेसी जो है डेप्रिसिएशन के लिए एंटाइटल्ड होगा उस हेड में जो असेसी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर वो दोनों हेड में आ सकता है तो. दूसरे शब्दों में बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स को भी प्लांट माना जा सकता है, बशर्ते कि वो इस फंक्शनल टेस्ट को पूरा करें, इस फंक्शनल टेस्ट को संतुष्ट करें. यानी कि वो इस टेस्ट को संतुष्ट करें कि वो पूरे ऑपरेटर्स का पार्ट है जिससे ट्रेड चलाया जा रहा है, और वो कोई जगह या सेटिंग नहीं है जहां पर ट्रेड चलाया जा रहा है. ये फंक्शनल टेस्ट है. उसके बाद आधुनिक समय में जो थिएटर की बिल्डिंग है, जिसमें कि ऑडिटोरियम भी शामिल है या स्टेज का प्रोजेक्शन रूम होता है, ये सब ट्रेड के टूल्स होते हैं. और थिएटर की बिल्डिंग भी जो है थिएटर के बिजनेस के ऑपरेशन का एक इंटेग्रल हिस्सा है, उसका एक अभिन्न हिस्सा है. और उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो महज एक सेटिंग है जिसमें बिजनेस चलाया जा रहा है. तो असेसी की तरफ से कहा गया कि ज्यादातर हाई कोर्ट जो इंडिया में है उन्होंने फंक्शनल टेस्ट को फॉलो किया, जिसको प्रोपाउंड किया गया है यह तय करने के लिए कि जो स्ट्रक्चर है वो बिल्डिंग है या प्लांट है. उन्होंने फंक्शनल टेस्ट को फॉलो किया. हाई कोर्ट्स ने यह व्यू लिया कि स्ट्रक्चर्स जो कि ऑपरेटर्स का पार्ट होते हैं जिससे बिजनेस चलाया जाता है, और जो महज सेटिंग नहीं होते बिजनेस के लिए, तो इसलिए उनको प्लांट माना जाना चाहिए ऐसे स्ट्रक्चर्स को डेप्रिसिएशन अलाउ करने के लिए. हाई कोर्ट के अनुसार इस फंक्शनल टेस्ट पे एक मॉडर्न थिएटर बिल्डिंग जो है या एक होटल बिल्डिंग जो है वो प्लांट के लिए क्वालिफाई हो जाएगी. तीसरी दलील जो पेश की गई एसएससी की तरफ से वो ये है कि कनॉडिया कोल्ड स्टोरेज और एसके तुलसी एंड सन्स के जजमेंट के बाद जो ऊपर कोट किए गए हैं, ताजमहल होटल की केस को फॉलो करते हुए लेजिस्लेचर ने प्लांट की डेफिनेशन को अमेंड कर दिया था सेक्शन 43(3) में 1995 के फाइनेंस एक्ट के द्वारा. जो अमेंडिंग सेक्शन है वो साफ तौर पे दिखाता है कि जो लेजिस्लेचर का जो मंशा है वो मंशा कभी ये नहीं थी कि सिनेमा या होटल बिल्डिंग को बाहर रखा जाए प्लांट के डेफिनेशन से, जो ऐसी बिल्डिंग है जो कि सेटिस्फाई करती हैं फंक्शनल टेस्ट को, तो इनको बाहर रखने का कोई मंशा नहीं थी. इस अमेंडमेंट से ये बात जाहिर हो रही है. यूज ऑफ द वर्ड इंस्टॉल्ड और इरेक्शन हैज नो बेयरिंग ऑन दिस इशू. जो इंस्टॉल्ड शब्द या इरेक्शन शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कि भी बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड होती है और बिल्डिंग को इरेक्ट किया जाता है, उसका कोई मतलब इस इशू के साथ नहीं है. ये भी दलील दी गई. जो तय करने वाला सब्जेक्ट है, विषय है, वो ये है कि एक होटल बिल्डिंग या सिनेमा थिएटर क्या उसको प्लांट माना जा सकता है. द सब्जेक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन इज नॉट फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी. ये डिफिकल्टी से फ्री नहीं है.
एंड इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ क्लियर लाइन, और क्लियर लाइन ड्रॉ करना मुश्किल है प्लांट और बिल्डिंग के लिए कुछ केसेस में, कि वो प्लांट है या बिल्डिंग है। और इसके बावजूद लेजिस्लेचर या सीबीडीटी जो है उसने अपनाया है कई नोटिफिकेशन के द्वारा, क्लैरिफिकेशन के द्वारा, मतलब उन्होंने कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया जिसमें कि वो क्लैरिफाई करें इस सब्जेक्ट को। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ सीबीडीटी का कोई सर्कुलर भी नहीं है, इसको क्लैरिफाई करने के लिए हाई कोर्ट का जो व्यू है उसको स्वीकार करना जरूरी है। हाई कोर्ट का व्यू स्वीकार करना जरूरी है। उन्होंने ये भी सबमिट किया कि सिनेमा थिएटर या होटल बिल्डिंग को एक यूनिट माना जाना चाहिए, और उसमें जो भी ऑपरेटस है वो पूरा का पूरा मिला जुला के एक यूनिट माना जाना चाहिए, बिल्डिंग और मशीनरी वगैरह को, बिजनेस को चलाने के लिए। और अगर उनको एक यूनिट मान लिया जाता है तो वो एक प्लांट होगा। और दूसरी बात यह कि ये जो बिल्डिंग है उनको अपने आप अलग थलग नहीं सोचा जाना है उनके बारे में, लेकिन बिजनेस के रिलेशन में सोचा जाना है कि बिल्डिंग का क्या इस्तेमाल हो रहा है। जो एसएससी बिजनेस चला रहा है उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि होटल या सिनेमा। और अपनी कंटेंशन के सपोर्ट में उन्होंने हेविली रिलाय किया ये बार्कले कर्ल एंड कंपनी लिमिटेड वाले केस को। इस केस पे इन्होंने हेविली रिलाय किया। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अब कहते हैं कि अब हम इसको डिसाइड करने जा रहे हैं। तो जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है वो ये है कि बिल्डिंग जो है, जो कि रनिंग होटल या सिनेमा वगैरह चलाने के लिए यूज हो रही है, क्या वो प्लांट है जैसा कि सेक्शन 43(3) में के प्रावधानों के अनुसार। तो सबसे पहले तो हम वो बार्कले कर्ल एंड कंपनी का जो जजमेंट है उसको रेफर करेंगे, जिस पर ज्यादातर हाई कोर्ट्स ने रिलाय किया है, और ज्यादातर हाई कोर्ट्स ने इसी जजमेंट पे अपनी जजमेंट को आधारित किया है इस निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए कि बिल्डिंग जो कि यूज की जा रही है होटल में या सिनेमा थिएटर के लिए वो प्लांट है। इस केस में यानी बार्कले कर्ल एंड कंपनी के केस में क्या हुआ था, ये केस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चल रहा था। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये कंसिडर किया गया कि यदि एक ड्राई डॉक जो कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया है, ड्राई डॉक होता है जहां पे शिप रिपेयर के लिए जाते हैं, तो यदि एक ड्राई डॉक जो कि कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया है शिप बिल्डर्स के यूज के लिए, शिप रिपेयर्स के यूज के लिए और मरीन इंजीनियर्स के यूज के लिए, अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है, जिसमें कि खुदाई का काम भी होता है, कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेटिंग, और एक खास तौर पे शेप बना के एक नई गड्ढा बनाया जाता है, एक बेसिन बनाई जाती है, तो जिसका डायरेक्ट एक्सेस होता है एक फ्लोर नीचे जहां पे हाई टाइड आता है, जिससे शिप फ्लोट करके अंदर आ जाते हैं। यानी खास तौर पे ये बनाया गया है, डिजाइन किया गया है जहां शिप फ्लोट करके अंदर आ जाएंगे और पानी फिर निकाल दिया जाता है और शिप बैठ जाता है कील के ऊपर। कील होता है शिप का जो रीढ़ की हड्डी जिसको कह सकते हैं। उसके बाद ये कहा गया कि रेलेवेंट पार्ट ऑफ सेक्शन 279, तो ड्राई डॉक को उन्होंने प्लांट माना था सेक्शन 279 में, जो इनकम टैक्स एक्ट 1952 का ब्रिटेन का है। ये इनकम टैक्स 1952 ब्रिटेन का है, उसके तहत सेक्शन 279 में उसको प्लांट मान लिया गया। रेलेवेंट पार्ट ऑफ सेक्शन 279 उतारा है सुप्रीम कोर्ट ने, और वहां ये लिखा हुआ है कि जहां पर भी एक पर्सन जो कि ट्रेड कर रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करता है मशीनरी या प्लांट के लिए अपने ट्रेड के पर्पज से, तो फॉर द ईयर ऑफ असेसमेंट इन द बेसिस पीरियड जिसके लिए एक्सपेंडिचर उसने इनकर किया है, उसको एक अलाउंस मिलेगा जो कि 3/10 होगा उस एक्सपेंडिचर का। तो ये मैटर जो था इसको मेजॉरिटी व्यू से डिसाइड किया गया था। इट वाज हेल्ड कि ड्राई डॉग भी प्लांट होता है। इस केस में ये होल्ड किया गया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स में।
अब प्लांट शब्द जो है यहाँ पे वो इंग्लिश भाषा में यूज किया जाने वाला शब्द है। तो ब्रिटेन में जो जिस तरह से लॉ इंटरप्रेट हो रही है और शब्द इंटरप्रेट हो रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर दिस पर्पज लॉर्ड रीड कंसिडर द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड प्लांट, और ये डिसाइड करने के लिए कि ड्राई डॉक एक प्लांट है, उसमें जो लॉर्ड रीड थे उन्होंने प्लांट की डेफिनेशन को कंसिडर किया, जो कि लिंडले एल जे ने दिए थे यारमाउथ वर्सेस फ्रांस के केस में। और ये जो डेफिनेशन है प्लांट की, ये ऑर्डिनरी सेंस में अगर लिया जाए तो इट इंक्लूड्स जो भी अपरेटस यूज किया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा, वॉट एवर अपरेटस जो बिजनेसमैन यूज करता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। अपरेटस एक संरचना होती है वस्तुओं की, चीजों की या प्रॉपर्टियों की, ये कह सकते हैं। ऐसी संरचना जिस संरचना से हम कोई रिजल्ट लेते हैं। तो अगर प्लांट जो है उसको, उसकी डेफिनेशन है वॉट एवर अपरेटस जो बिजनेसमैन यूज करता है, जो बिजनेस चला रहा है, जिसमें उसका स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड को खरीदता है और बेचता है, लेकिन जितने भी उसके गुड्स हैं, फिक्स्ड और मूवेबल, लाइव और डेड, जो वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए रखता है, मतलब अपने पास जो परमानेंटली रखता है, इनको परमानेंटली एम्प्लॉय करके रखता है सामान को, चाहे वो जानवर हो, चाहे सामान हो, मृत हो चाहे जीवित हो, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में जिसको रखता है, वो सब चीजें जो है प्लांट की डेफिनेशन में आएंगी। और इसलिए ये ऑब्जर्व किया गया था कि द ड्राई डॉक वॉज इन आवर व्यू नॉट द मेयर सेटिंग। ड्राई डॉक जो है केवल एक सेटिंग या प्रीमाइसिस नहीं है जिसमें कि शिप्स रिपेयर किए जाते हैं। ये फर्क एक फैक्ट्री से जिसमें मशीनरी रखी रहती है, ड्राई डॉक उस फैक्ट्री से फर्क है जिसमें मशीनरी हाउस रहती है, रखी रहती है, लगी रहती है, इंस्टॉल रहती है। क्योंकि डॉक के ऑपरेशन में डॉक खुद भी भाग ले रहा है, डॉक की बिल्डिंग खुद एक भाग ले रही है पानी के कंट्रोल के लिए और वाल्वों के एनेबलमेंट के लिए, पंप के लिए, बिजली के जनरेटर वगैरह के साथ मिलके। क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं कंस्ट्रक्शन का इंटेग्रल पार्ट हैं, अभिन्न पार्ट हैं, अपनी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डॉक खुद भी एक पार्ट उसमें प्ले करता है। तो इसलिए डॉक कोई जो है महज एक शेल्टर नहीं है, कोई आसरा नहीं है, कोई घर नहीं है, लेकिन वो खुद भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग ले रहा है ऑपरेशंस में, जो कि ऑपरेशंस चलाए जाते हैं कि शिप को डॉक के अंदर लाने के लिए, उसके बाद शिप को वहाँ पे सुरक्षा से वहाँ पे उसको होल्ड करके रखने के लिए, और रिपेयर के बाद उसको वापस रिवर में भेज देने के लिए। और इसके बाद आगे कहा गया इसी जजमेंट में, बाकले में, कि प्लांट वाज नॉट डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। प्लांट को इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, जो ब्रिटिश इनकम टैक्स एक्ट है। एंड देयर आफ्टर इन्होंने होल्ड किया कि ड्राई डॉक का हर पार्ट जो है एक एसेंशियल पार्ट प्ले करता है बड़ी बड़ी वेसल्स को अपने पोजीशन में लाने के लिए, जहां पर उसके जो बाहरी सतह पे, हल मतलब जो बाहरी सतह होती शिप की, उस पर काम किया जाएगा। And that it is wrong to regard either the concrete or any other part of the dock as a mere setting. और डॉक या उसके कंक्रीट को एक सेटिंग मानना गलत होगा या प्रीमाइस मानना गलत होगा जिसमें ऑपरेशन चलाए जा रहे हों। पूरा का पूरा डॉक हमारे सोच में एक मीन्स है, एक तरीका है जिसके द्वारा प्लांट अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। लॉर्ड रीड के बाद लॉर्ड गेस्ट ने भी एग्री किया था लॉर्ड रीड के व्यू से, और उसमें अपने जजमेंट में जो उन्होंने रेंडर किया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था ये डिसाइड करने के लिए कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक एपरेटस है कि नहीं है। तो ये ऑब्वियस है कि एक इंक्वायरी करनी पड़ेगी इस बारे में कि कौन सा ऑपरेशन वो परफॉर्म कर रहा है।
और लॉर्ड हडसन ने हालांकि इस व्यू से डिसएग्री किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डॉक एक कंप्लीट यूनिट है और उसमें बहुत सारा इक्विपमेंट होता है जिसके बिना ड्राई डॉक जो है अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता। ये जो इक्विपमेंट है इसको डेफिनेटली अलाउंस मिलना चाहिए क्योंकि उसके एक्सपेंडिचर के अप्रोप्रिएट है प्लांट के लिए, यानी प्लांट पे जो रिबेट मिल रहा है, अलाउंस मिल रहा है, वो मिलना चाहिए। और वो जो इक्विपमेंट है जैसे डॉक गेट है, ऑपरेटिंग गियर है, कास्ट आयरन के कील ब्लॉक्स है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, पंपिंग इंस्टॉलेशन, दूसरे जो इक्विपमेंट है, सब मिला जुला के ये इनिशियल अलाउंस के लिए क्वालिफाई करने चाहिए जैसे कि वो प्लांट पे करे गए हों। मतलब लॉर्ड हडसन ने भी बात से एग्री किया, बस ये कहा कि इंक्वायरीज टू बी मेड की जरूरत नहीं है, ये बहुत क्लियर है। और उसके बाद बिल्डिंग के बारे में ये ऑब्जर्व किया गया, यानी ये कहा गया कि बिल्डिंग या स्ट्रक्चर जो है नॉर्मली स्टैच्यूट के यानी लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, लॉ के संदर्भ में देखा जाना चाहिए बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को, कि वो ऐसी चीज है जो कि ज्यादा ड्यूरेबल है, मशीनरी या प्लांट्स ड्यूरेबल यानी ज्यादा दिन बरकरार रहने वाली, और इसलिए ये जो डिफरेंस है ये लेस ड्यूरेबल के फेवर में होना चाहिए। द डॉक जो है वो तो 80 या 100 साल तक चल सकता है अगर उस पर टाइमली रिपेयर किए जाए। तो इसलिए उसके बाद कहा गया लर्नड लॉर्ड के द्वारा, उन्होंने डिसएग्री किया विद आर्गुमेंट बेस्ड ऑन फंक्शनल टेस्ट। उन्होंने कहा भाई फंक्शनल टेस्ट के आर्गुमेंट से डिसएग्री किया और उन्होंने एग्री किया कि जो रीजनिंग फिनले जे ने दी है इस केस में, जहां पर ऑब्जर्व किया गया था कि अगर कोई फैक्ट्री को लेता है मशीनरी के साथ तो मशीनरी जो है वो प्लांट होगी, लेकिन फैक्ट्री जो है, जो ईंटें गारा वगैरह है, वो प्लांट नहीं होगा। और फाइनली ऑब्जर्व किया गया कि टू डॉक को एपरेटस रिगार्ड करना, to regard the dock as apparatus was wrong as it was something quite different from the generally accepted conception of the plant. लॉर्ड अपजॉन ने कहा कि मतलब ये जो मेजॉरिटी व्यू से डिसएग्री किया, और उसके बाद आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। वी मे मेंशन एट दिस स्टेज दैट इवन इन इंग्लैंड में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बार बार कमेंट किया है कि जो प्लांट शब्द है उसका जो एप्लीकेशन है, शब्द का जो जिस तरह से ये शब्द अप्लाई किया जाता है वो बहुत एक्यूरेट तरीके से अप्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि इसको एक आर्टिफिशियल मीनिंग दिया गया है। आर्टिफिशियल मीनिंग का मतलब जैसे प्लांट होता है ना, पौधे शब्द से ग्रहण किया गया इस शब्द को, और एक आर्टिफिशियल मीनिंग देके कहीं दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है। तो इसीलिए प्लांट को डिफाइन भी नहीं किया गया। और कोल ब्रदर्स वर्सेस फिलिप्स वाले केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कंसिडर किया था यदि जो एक्सपेंडिचर इलेक्ट्रिक लाइटिंग में किया जा रहा है या कॉन्ड्यूट और केबल्स में किया जा रहा है, क्या वो ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि प्लांट के लिए है जिससे उसको कैपिटल अलाउंस मिल जाए। और इस संबंध में लॉर्ड हिल्शैम ने ऑब्जर्व किया था कि जो शब्द है प्लांट, हालांकि ये एक आर्ट का टर्म तो नहीं है और इसलिए ये जनरल इंग्लिश भाषा का प्रयोग में आने वाला शब्द तो है, लेकिन ये शब्द ऐसा है जो कि इम्प्रेसाइज एप्लीकेशन का है, कहीं भी लगाया जा सकता है, कोई बहुत इसका एक्यूरेट इस्तेमाल नहीं है। और जहां तक हम देख सकते हैं कि इसको इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इक्विपमेंट के लिए लगाया गया है, ये बहुत ही एनालॉजिकल और मेटाफोरिकल सेंस में लगाया गया है। एनालॉजी का मतलब है कि मिलता जुलता एग्जाम्पल, मेटाफोरिकल सेंस का मतलब है किसी चीज को कोई दूसरी चीज कह देना। तो ये लिटरेरी तरीके से किसी चीज को किसी चीज से मिलान करके और इसको इंडस्ट्री में और कमर्शियल इक्विपमेंट के लिए प्लांट शब्द को बड़े इम्प्रेसाइजली यूज किया जाता है। और ये शब्द जो है बोरो किया गया है बॉटनी से, बॉटनी जो पौधा है। फॉर दिस पर्पज कोर्ट ने लॉर्ड बकले के शब्दों को कोट किया कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अंग्रेजी बोलता है
और अंग्रेजी को समझता है एक्यूरेटली, बट नॉट पेडेंटिकली। पेडेंटिकली मतलब जैसे पढ़ा दिया गया हो और एक ही बात को जैसे आदमी रट लगाता रहे। जो व्यक्ति अंग्रेजी को एक्चुअली समझता है वो उसको कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करेगा, कॉन्टेक्स्ट के साथ, संदर्भ के साथ इंटरप्रेट करेगा और उस सब्जेक्ट मैटर को के ऊपर उसको अप्लाई करेगा उस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टांसिस के हिसाब से। शब्दों का प्रयोग जो है अंग्रेजी भाषा में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा को ठीक से समझता है वो उसको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से लगाएगा। उस हिसाब से नहीं कि एक शब्द उसको अर्थ बता दिया गया वही अर्थ हर जगह लगा रहा है, पेडेंटिकली जिसका मतलब है। कोर्ट ने आगे बोला कि in delivering the leading judgment in the Court of Appeal in the instance case warily and perhaps wearily, it added the cautionary rider that the English speaker, जो अंग्रेजी बोलने वाला है, be assumed to have studied the authorities. उसके बारे में ये माना जाना चाहिए कि उसने सारे अंग्रेजी के अथॉरिटीज को, किताबों को, एक्सपर्ट चीज़ों को पढ़ चुका है। These, however, as he cautiously admitted in an earlier passage, cannot be pretended to be reconciled. लेकिन इस बात से हम reconcile नहीं कर सकते। अंग्रेजी बोलने वाला सब कुछ जानता होगा। And as he said in a still earlier passage, और जैसा कि उन्होंने और पहले कहा था, ये बात बियॉन्ड डाउट है कि जो शब्द प्लांट, ये एक रेलेवेंट सेक्शन में यूज किया गया, एक आर्टिफिशियल और लार्जली जज मेड सेंस में। मतलब प्लांट शब्द को जजों ने एक तरह से यूज करना शुरू कर दिया कि जज के द्वारा बनाए गए सेंस में यूज किया ज्यादा जाता है और इसका एक्चुअल मीनिंग तो कुछ और है जो बॉटनी से लिया गया। तो कहने का मतलब कि एक इम्प्रेसाइज एप्लीकेशन का शब्द है। The court therefore observed that if the plant is to be contrasted with the place in which the business is carried on, अगर प्लांट को हमको अलग देखना है उस जगह से जो जहाँ बिजनेस चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको लाइन जो है खींचनी पड़ेगी कि कहाँ प्लांट है, कहाँ बिल्डिंग है। और इसलिए उसके लिए लाइन खींचने के लिए कोई क्राइटेरियन होना चाहिए, कोई मापदंड होना चाहिए जिसके आधार पे हम दोनों का फ्रंटियर डिसाइड कर सकें, दोनों का बॉर्डर डिसाइड कर सकें प्लांट और बिल्डिंग के बीच का। लेकिन ऑन द स्पेशल फैक्ट्स रिलेटिंग टू दीज कंपोनेंट्स कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये जो कॉन्डुइट पाइप्स वगैरह थे, उन्होंने ये होल्ड किया था कि ये एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर कमिश्नर सही थे हर कंपोनेंट को सेपरेटली लेने में, जिसका क्योंकि पर्पस अलग अलग था, और उनको उन्होंने हर एक को इन्होंने होल्ड किया था कि प्रत्येक जो कंपोनेंट है वो कोई प्लांट नहीं। उसके बाद इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर्स वाले केस में न्यूकैसल ब्रेवरीज, क्वेश्चन ये था कि जो पैसा इलेक्ट्रिकल रीवायरिंग या इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया गया था, फिटिंग पे खर्चा किया गया था, अलग अलग तरह के डेकर है म्यूरल्स पे खर्चा किया गया था, होटल में जो डेकोरेशन किया जाता है या जो आकृतियां लगा दी जाती हैं, जो पेंटिंग लगा दी जाती हैं, उसको कंसिडर किया गया था कि क्या वो प्लांट है। लॉर्ड विल्बर फोर्स ने कहा कि जो प्लांट शब्द है उसको ज़्यादातर यूज़ किया गया है फिस्कल और दूसरे लेजिस्लेशन में, इन्हें फाइनेंशियल लेजिस्लेशन में ज़्यादा यूज़ किया गया है। ये एक बड़ा कैटेगरी है शब्दों का एज टू विच जिसके की कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की गई। लॉ में कोई भी डेफिनेशन इसकी प्रोवाइड नहीं की गई, सो दैट इट इज लेफ्ट टू द कोर्ट। इसलिए ये कोर्ट पे छोड़ दिया गया कि वो इसको इंटरप्रेट करें। एंड इट नेचुरली हैपन्स दैट एज द केस फॉलोज केस, और एक केस जैसे दूसरे केस को फॉलो करता जाता है और एक एक्सटेंशन से दूसरा आ जाता है, तो इस शब्द का मीनिंग जो है ग्रेजुअली बड़ा होता चला जाता है, डाइवर्जेस, अपने नेचुरल शब्दों से वो डाइवर्ट कर जाता है, यानी रास्ता बदल देता है, या डिक्शनरी मीनिंग से भी वो डाइवर्ट कर जाता है। और यही बात प्लांट के साथ हुई है, प्लांट शब्द के साथ हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति
चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, वो कोई हॉर्स या स्विमिंग पूल या मूवेबल पार्टीशंस या इवन ड्राई डॉक या प्लांट को, नो ऑर्डिनरी मैन would think that a horse, swimming pool, movable partitions or even a dry dock was plant. कोई भी सामान्य व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि ये सारी चीजें प्लांट है, कि घोड़ा प्लांट है, स्विमिंग पूल प्लांट है, पौधा है, ऐसे थोड़ी सोचेगा। लेकिन कोर्ट्स ने इसको ऐसे होल्ड किया हुआ है। सो व्हाई नॉट सच इक्वली इम्प्रॉबेबल आइटम्स एज म्यूरल्स और टेपेस्ट्रीज और शैंडलियर्स। तो अगर आप इन चीजों को प्लांट मान लेते हैं तो शैंडलियर को भी मान लीजिए, टेपेस्ट्री जो सजावट होती है दीवारों पे, म्यूरल्स को मान लीजिए प्लांट। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ऑब्जर्व किया कि जो फंक्शनल टेस्ट है उससे भी अपने को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इवन द फंक्शनल टेस्ट वाज इनकंक्लूसिव। और इसलिए कोर्ट ने सजेस्ट किया कि हर केस को रिजॉल्व किया जाना चाहिए बहुत ध्यानपूर्वक कंसीडर करके कि वो पर्टिकुलर ट्रेड का नेचर क्या था जो चलाया जा रहा है, और क्या रिलेशन था एक्सपेंडिचर का उस ट्रेड के प्रमोशन के लिए। और ये टेस्ट अप्लाई करते हुए कोर्ट ने होल्ड किया कि आई डू नॉट फाइंड इट इम्पॉसिबल टू एट्रीब्यूट टू पार्लियामेंट एन इंटेंशन to encourage by fiscal inducement the improvement of the hotel amenity. मैं समझता हूं कि यह बात भी इम्पॉसिबल नहीं है कि शायद पार्लियामेंट जो है उसके पास ये इंटेंशन हो कि वो फिस्कल इंड्यूसमेंट देके, फिस्कल प्रेरणा देके, संप्रेरण करके होटल की एमिनिटीज को बढ़ाएं। तो अच्छा है, होटल की एमिनिटीज को प्लांट मान लीजिए, उसको ज़्यादा अच्छा डेप्रिसिएशन मिलेगा या अलाउंस मिलेगा, तो होटल की एमिनिटीज बढ़ेंगी। तो शायद पार्लियामेंट का यही इंटेंशन हो, और इसलिए इन शैंडलियर्स, टेपेस्ट्रीज, म्यूरल्स वगैरह को भी प्लांट मान लेना चाहिए। और इसी केस में लॉर्ड लॉरी ने एक और केस को कंसिडर किया जिसमें कि शिप, जो कि एक फ्लोटिंग हल्क था, हल्क मतलब बहुत बड़ी चीज, जिसको रेस्टोरेंट की तरह यूज किया जा रहा शिप को, और इसको होल्ड किया गया था कि वो एक प्लांट नहीं है। और ये होल्ड करते हुए ऑब्जर्व किया था कि जो क्राउन है, यानी ब्रिटिश क्राउन, उन्होंने रिलाई किया था ऑन द केस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द शिप वाज यूज्ड टू क्रिएट अ शिप बोर्ड फीलिंग। शिप को एक शिप में रहने वाली फीलिंग क्रिएट करने के लिए यूज किया गया है। इन अदर वर्ड्स, एक तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है जो भी जजमान आते हैं वहां पे उनके लिए। लेकिन फर्क यह है कि शिप वो एक ऐसी जगह है जिसमें कि ट्रेड चलाया जा रहा था, और इसलिए वो एक प्रीमाइसिस था जिसमें कि जो टैक्स पेयर कंपनी है वो अपना ट्रेड चला रही है, और शिप कोई ऑपरेटर्स नहीं है जिसको ट्रेड से जुड़ा हुआ मान लिया जाए कि ट्रेड को उसके बिना नहीं चलाया जा सकता टाइप का एडजंक्ट यानी जुड़ा हुआ मान लिया जाए उस प्रोमाइसिस में। और इसके बाद ऑब्जर्व किया गया कि ड्राई डॉक जो है वो एक स्ट्रक्चर है और एक प्लांट भी है। तो इस प्रकार से बार्कले कर्ल एंड कंपनी लिमिटेड के केस को बहुत डिटेल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें डिस्कस किया गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 32 के प्रोविजंस को रखा और सेक्शन 43(3) के प्रोविजंस को रखा। तो ये प्रोविजंस हैं, उनको हम स्किप कर जाते हैं। ये प्रोविजंस हैं, इसके बाद डिस्कशन आएगा, डिस्कशन पे जाते हैं। ये सब प्रोविजंस जो हैं सेक्शन 32 के, जो उस समय प्रावधान थे, उनको रखा। उसके बाद उन्होंने एक टेबल ऑफ रेट्स जो होती है डेप्रिसिएशन की, उसको भी रखा, जो कि अलग अलग आइटम्स के लिए अलग अलग टेबल होती है। और ये रखने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक केयरफुल स्क्रूटनी करने के बाद क्या बात निकल के आ रही है। वो ये निकल के आ रहा है सबसे पहले कि सेक्शन 32 की जो स्कीम है वो ये है कि हम अलग अलग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, रेट, अलग अलग डेप्रिसिएशन के रेट देंगे। बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, शिप, जो बिल्डिंग होटल के लिए यूज की जाती है, एरोप्लेन्स, और जो दूसरे आइटम्स के लिए हम अलग अलग रेट देंगे। और जो 32 का क्लॉज 2 है
स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है डेप्रिसिएशन को ग्रांट करना बिल्डिंग मशीनरी हर एक के लिए उन्होंने प्रेस्क्राइब परसेंटेज दी हुई है रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर, और रेट्स जो प्रेस्क्राइब किए गए हैं वो इनकम टैक्स रूल्स में प्रेस्क्राइब किए गए। और उसके बाद क्लॉज 2A में एक स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया है जिसमें कि कोई नई मशीनरी या प्लांट होता है जिसका इंस्टॉलेशन होता है उसका जो है एक एडिशनल डेप्रिसिएशन उनको मिलता है। और ये भी कहा गया कि 32(1) के बाद 32(1)(2) में अगर कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो अंडर क्लॉज 2 अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो एक एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल रहा है। फर्दर जो प्रोवाइजो है वो एक एक्सेप्शन भी कार्व आउट करता है, एक प्रोवाइजो जो एक एक्सेप्शन कर रहा है कि कोई भी डिडक्शन नहीं अलाउ किया जाएगा ऐसी मशीनरी या प्लांट के लिए जो कि ऑफिस प्रेमाइसिस में इंस्टॉल्ड है या किसी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में इंस्टॉल्ड है। इसका मतलब है लेजिस्लेचर ने बिल्डिंग को 3 तरह से डिवाइड किया या 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है जहां पर बिल्डिंग को जो कि ऑफिस प्रेमाइस के लिए यूज किया जा रहा है, दूसरी है जहां पर बिल्डिंग को रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज किया जा रहा है, और तीसरा है जहां पर बिल्डिंग इनके अलावा जो बिजनेस पर्पज है उसके लिए यूज किया जा रहा है। मतलब यह है कि जो फ्रेज रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है, जो मीनिंग उस फ्रेज को दिया जा रहा है जिसमें कि अकोमोडेशन शामिल है गेस्ट हाउस का, यानी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में गेस्ट हाउस भी शामिल है और उसमें होटल खासतौर पे एक्सक्लूडेड है, यानी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में होटल को बाहर एक्सक्लूड द प्रेमाइसेस यूज्ड एज ए होटल। इसलिए लेजिस्लेचर ने होटल बिल्डिंग को प्लांट नहीं माना है। जो फ्रेज है प्रेमाइसेस, द फ्रेज इज प्रेमाइसेस यूज्ड एज ए होटल वेयर मशीनरी और प्लांट इज इंस्टॉल्ड, ये फ्रेज यूज किया गया है वहां पे। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने कहा कि 32(1)(5) में एक स्पेसिफिक प्रोविजन है जिसमें कि एक नई बिल्डिंग के लिए प्रोविजन और जो खड़ी की गई हो 31(3)(67) के बाद और होटल के रूप में अगर कंडीशन मेंशन वहां पे सेटिस्फाई होती है तो जो बिल्डिंग है जो होटल के रूप में यूज हो रही है उसको एक 25% उसके एक्चुअल कॉस्ट का डेप्रिसिएशन मिलता है। और लेजिस्लेचर ने कंसिडर किया है कि ये बिल्डिंग जो है एक होटल बिजनेस से सेपरेट है, वो एक बिल्डिंग है एंड बिल्डिंग को प्लांट नहीं माना है, हालांकि इसको एक डेप्रिसिएशन का रेट दिया अलग से, प्लांट नहीं मान लिया है, प्लांट में नहीं इसको ऐड कर दिया है, इसको बिल्डिंग होते हुए एक अलग से रेट दिया है। और पूरे सेक्शन 32 में फॉर द बिल्डिंग इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि जब भी व्हेनेवर इट इज इरेक्टेड, जबकि मशीनरी प्लांट के लिए शब्द जो है इंस्टॉल्ड यूज किया जाता है, बिल्डिंग के लिए जो है बार बार शब्द जो है इरेक्शन यूज किया जाता है। एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंस्टॉलिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग को इंस्टॉल करने का कोई क्वेश्चन नहीं है। सेक्शन 32(1)(2)(a) जो है मशीनरी या प्लांट फ्रेज को यूज करता है जो कि एक ऐसी प्रेमाइस में इंस्टॉल्ड है जो होटल की तरह यूज हो रहा है। सेक्शन 33(1)(b)(2) एक मशीनरी प्लांट की बात करता है जो इंस्टॉल्ड है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और कंस्ट्रक्शन, और ये सारी बातें इंडिकेट करती हैं कि प्लांट इज टू बी इंस्टॉल्ड। जो चीज इंस्टॉल होती है वो प्लांट है और प्लांट का इरेक्शन नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल साफ है। और रूल्स के तहत अलग अलग रेट्स दिए गए हैं बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, शिप्स वगैरह को, और इसके बाद इन हेडिंग्स को सब हेडिंग्स में भी डिवाइड किया गया, सब डिवाइड किया गया है। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग को भी सब डिवाइड किया गया है, जैसे एक जनरल बिल्डिंग, दूसरा एक फैक्ट्री बिल्डिंग, और तीसरा टेम्पररी इरेक्शन जैसे कि लकड़ी के स्ट्रक्चर्स। और रिमार्क्स कॉलम 3 में ये स्टेट किया गया है कि बिल्डिंग्स में रोड शामिल है, ब्रिजेस शामिल है, कलवर्ट, नालियां वगैरह, कुएं और ट्यूबवेल शामिल है।
फर्नीचर फिटिंग को भी डिवाइड किया गया है एक जनरल और एक ऐसे फर्नीचर अलग किया गया जहां पे होटल रेस्टोरेंट के रूप में फर्नीचर यूज किया जा रहा है, बोर्डिंग हाउसेस के रूप में यूज किया जा रहा है। इसी प्रकार से मशीनरी और प्लांट एक हेडिंग में आते हैं और उनको भी डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक तो जनरल रेट है, दूसरा स्पेशल रेट है, जो स्पेशल मशीनरी वगैरह होती है। उसके बाद स्पेशल रेट्स प्रोवाइड किए गए हैं ऐसी मशीनरी के लिए भी जो सिनेमाटोग्राफिक फिल्म रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट में यूज की जाती है। और उसके बाद डिफरेंट रेट्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर मशीनरी फॉर सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स, जिसमें कि स्टूडियो लाइट्स एक्सेप्ट बल्ब्स वगैरह ये सब प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस डिस्कशन को करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये बात काफ़ी साफ है कि एक बिल्डिंग अगर होटल की तरह यूज होती है तो एक स्पेसिफिक प्रोविजन है फॉर ग्रांटिंग डेप्रिसिएशन अलाउंस एट स्पेसिफाइड रेट्स अगर कंडीशन फुलफिल होती हैं। इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं है कि हम डिक्शनरी मीनिंग को देखें प्लांट वर्ड के, यानी प्लांट वर्ड के हमको डिक्शनरी मीनिंग को देखने की जरूरत नहीं है, जिसमें कि बिल्डिंग हो सकता है हो या ना हो। अपनी कंक्लूजन को डिराइव करने के लिए कि बिल्डिंग जो कि स्पेसिफिकली डिजाइंड है, कंस्ट्रक्टेड है होटल बिल्डिंग के रूप में, वो एक प्लांट होगा, क्योंकि बिल्डिंग के लिए अलग से एक डेप्रिसिएशन अलाउंस को दिया गया है। और उसके बाद लेजिस्लेटिव स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 32 के, जो कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करती है अलग अलग रेटों, अलग अलग चीज़ों के लिए। इवन दो द वर्ड प्लांट में इंक्लूड बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, भले ही प्लांट वर्ड में बिल्डिंग या स्ट्रक्चर आए कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि डिक्शनरी मीनिंग में होता है, बट ये कहना कि बिल्डिंग जो यूज की जाती है होटल या सिनेमा के लिए वो प्लांट होगी एक्ट के तहत भी, वो फेस ऑफ इट पर भी इनकंसिस्टेंट है प्रोविजंस के साथ, क्योंकि इवन एक्ट ने उसको प्लांट घोषित नहीं किया है। तो इसलिए बिल्डिंग का प्लांट वाला मीनिंग लेना लेजिस्लेटिव इंटेंशन के विपरीत हो जाएगा। तो जब हम ये शब्द इंटरप्रेट करते हैं, जैसे कंजम्पशन, रॉ मटेरियल एंड यूटिलाइज्ड शब्द जो कि इंपोर्ट कंट्रोल पॉलिसी में आए हैं, तो वहाँ पर इस केस में ऑब्जर्व किया गया था कि इन आवर ओपिनियन जो डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, इस केटी कौशलराम केस में कहा गया था कि हमारे ओपिनियन में जो डिक्शनरी मीनिंग होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं एक जनरल मतलब को समझने के लिए शब्दों के, और ये उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते जहाँ पर जो स्टैचूट है या लॉ है या जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ दूसरा शेड ऑफ मीनिंग कन्वे कर रहा हो। तो लॉ जो मीनिंग कन्वे कर रही है उसको पकड़ना जरूरी है, वहाँ फिर डिक्शनरी मीनिंग पे नहीं जाना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन का यहाँ पे एक पॉइंट है। It is not always a safe way to construe a statute or contract by dividing it by a process of etymological dissection. ये सही नहीं होगा, एक सेफ नहीं होगा कि हम किसी भी स्टैचूट या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर दें, शब्दों के मीनिंग निकालने के लिए शब्दों को विभाजित कर दें। एटिमोलॉजिकल डिसेक्शन ही शब्दों का मीनिंग ग्रहण करने के लिए उसके शब्दों को अलग अलग पार्ट में संधि विच्छेद कर दें, और शब्दों को अलग अलग करने के बाद और उसके संदर्भ से भी हटाने के बाद हम हर शब्द का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बनाएं, जो कि लेक्सिकोग्राफर यानी जो डिक्शनरी बनाने वालों ने दिया हुआ है, और फिर से उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करें उन डेफिनेशंस के आधार पर। तो ये सेफ तरीका नहीं है कि हम कोई भी शब्द को या कोई सब शब्दों के समूह को अलग अलग भाग में विभाजित कर दें, और विभाजित करके हर भाग का जो मीनिंग डिक्शनरी में लिखा है वो लेके और फिर जोड़ जोड़ के उसका अर्थ बना दें। ये सेफ नहीं होगा।
what particular meaning should be attached to the words and phrases. कौन सा मीनिंग किसी वर्ड और फ्रेज से अटैच किया जाना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट में या किसी भी अधिनियम में, इसको उसके कॉन्टेक्स्ट से गैदर करना है, उसके संदर्भ से उठाना है. संदर्भ बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद उसके सब्जेक्ट मैटर के नेचर से भी लेना है, किस विषय की बात हो रही है और पर्पस क्या था उनको लिखने वाले का, या इंटेंशन क्या था ऑथर का, वो देखना है. और कोई भी परमिसिबल मीनिंग उस पर लेने के बाद उसका अर्थ, उसका असर क्या होता है, अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो जाता, और उसका जो उद्देश्य था जिसकी वजह से वो लिखा गया था, क्या वो उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा. ये सब मीनिंग ग्रहण करते वक्त ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए, सब्जेक्ट मैटर को देखा जाए, पर्पस और इंटेंशन को देखा जाए ऑथर के, और क्या उद्देश्य पूरा हो रहा है. क्योंकि शब्द जो हैं आखिरकार एक यान है अपने आइडिया को कन्वे करने का, स्पीकर के या राइटर के, और इसलिए शब्दों को स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से उनका मीनिंग लेना चाहिए जो कि पूरे कॉन्टेक्स्ट से जो मीनिंग निकल रहा है उसमें फिट हो जाए, as to fit in with the idea which emerges on a consideration of the entire matter. और इस टेस्ट को लगा के सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम ये गैदर करते हैं कि जो मीनिंग है शब्द का बिल्डिंग एंड प्लांट, स्कीम जो है सेक्शन 32 की, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम मीनिंग लेते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमको वो जज सेंस वाला मीनिंग लिया जाए, जिस सेंस में जजेस इस मीनिंग को, प्लांट शब्द को प्रयोग करते आए हैं, जो एक आर्टिफिशियल और इम्प्रेसाइज एप्लीकेशन वाला मीनिंग है जो प्लांट शब्द को दिया गया है अलग अलग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के कॉन्टेक्स्ट में. लेकिन जो सेक्शन 32 की स्कीम है वो बिल्कुल भी इधर उधर ना करते हुए बिल्कुल साफ तौर पे कहती है, अनइक्विवोकली कहती है. अनइक्विवोकली मतलब बिल्कुल क्लियर एक ही बात कहती है, कोई दो तरफा बात नहीं है. तो जो स्कीम है सेक्शन 32 की, उससे कंक्लूजन ड्रॉ होता है, अनइक्विवोकल कंक्लूजन, कि जो बिल्डिंग और प्लांट है उनको अलग सेपरेटली ट्रीट किया जाना चाहिए डेप्रिसिएशन के पर्पज से. मशीनरी को हायर डेप्रिसिएशन का रेट मिलेगा और प्लांट को जो है और बिल्डिंग को जो है कम मिलेगा, जिसके में ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है. बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है. सीआरटी वर्सेस मीर मोहम्मद अली के केस में इस कोर्ट ने मशीनरी शब्द को कंसिडर किया था और ये ऑब्जर्व किया था कि जो शब्द मशीनरी है वो एक ऑर्डिनरी शब्द है और कोई टेक्निकल तकनीकी शब्द नहीं है, और जब तक कि कॉन्टेक्स्ट में कोई दूसरी बात ना लिखी हो, हमको ऑर्डिनरी मीनिंग ही प्रिवेल करना चाहिए. यानी एक और बात है इंटरप्रिटेशन की यहाँ पे आ रही है, जो कि अगर शब्द का मीनिंग ऑर्डिनरी है और टेक्निकल नहीं है तो उसको ऑर्डिनरी मीनिंग ही प्रिवेल करना चाहिए. और उसके बाद कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था सीआरटी वर्सेस मीर मोहम्मद अली में कि अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन एक डीजल इंजन क्लियरली मशीनरी है, और वाकई में रूल 8 जो है इनकम टैक्स रूल्स का, वो एरो इंजन्स को भी एयरक्राफ्ट से अलग ट्रीट करता है. इट इज ट्रू कि ये जो रूल, इसको हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं एक्ट के क्लॉजेस के लिए, बट इट डज शो दैट कंपोनेंट्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट व्हिच आर मशीनरी कैन बी ट्रीटेड सेपरेटली. एक बात यहां नजर आ रही है कि एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स को एयरक्राफ्ट मानना कोई जरूरी नहीं है और एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स को अलग भी माना जा सकता है. ऐसे बिल्डिंग के अंदर जो प्लांट वगैरह है उसको अलग माना जा सकता है. और इसके बाद ये होल्ड किया गया, फॉर द वर्ड्स प्लांट एंड इंस्टॉल्ड द कोर्ट फर्दर व्हेन द असेसी परचेज द डीजल इंजन. कोर्ट ने कहा कि जब असेसी ने डीजल इंजन परचेज किए थे तो वो कोई प्लांट नहीं थे या प्लांट का पार्ट नहीं था, क्योंकि वो किसी व्हीकल में इंस्टॉल नहीं थे जब वो उनको खरीदा गया था.
तो वो एक मशीनरी थे, अभी वो प्लांट का पार्ट नहीं थे जब उनको खरीदा गया, और इसलिए 20% कॉस्ट जो है उनकी, जो कि अलाउ होती है एक्ट में, उनको अलाउ होनी चाहिए थी, वो ये मतलब ब्रिटिश लॉ का पार्ट है। और सारी कंडीशन जो कि एक्ट के द्वारा शर्तें लगाई गई हैं वो सेटिस्फाइड हैं। और अगर हम उस पॉइंट पे सोचें जो कि जब परचेज हुआ था और इंस्टॉलेशन हुआ था, तो जो परचेज इंस्टॉल की गई थी वो एक मशीनरी, और इसके बाद द कोर्ट कंसिडर्ड द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन इंस्टॉल। उसके बाद मशीनरी शब्द के बाद उसी केस में इंस्टॉल शब्द को भी कंसिडर किया गया है, और उन्होंने होल्ड किया कि जब एक इंजन को व्हीकल में लगा दिया जाता है तो उसको इंस्टॉल माना जाता है। और इसी प्रकार से इस मौजूदा केस में भी जो वर्ड प्लांट है उसको सेक्शन 43(3) में जो मीनिंग दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो शिप्स, व्हीकल्स, बुक्स, साइंटिफिक अपरेटस और सर्जिकल इक्विपमेंट है जो बिजनेस के लिए यूज होता है वो शामिल होगा प्लांट शब्द में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बिल्डिंग भी शामिल होगी, क्योंकि बिल्डिंग को सेपरेटली ट्रीट किया गया मशीनरी या प्लांट से। यानी सेक्शन से ही ये बात साफ साफ हो रही कि बिल्डिंग एक अलग चीज है और प्लांट एक अलग चीज है। प्लांट को वाइडर मीनिंग जो है दिया गया है, कुछ खास आइटम भी उसमें ऐड किए गए हैं जैसे शिप, व्हीकल, बुक्स वगैरह। और ताजमहल होटल वाले केस में इस कोर्ट ने ये खास तौर पे ऑब्जर्व किया था कि ये वेल सेटल्ड है कि जहां पर भी किसी शब्द का जो डेफिनेशन है वो दिया नहीं होता है, एक और भी इंटरप्रिटेशन का पॉइंट है यहाँ पे, कि जहां पर भी किसी शब्द का मीनिंग नहीं दिया होता तो उसको लोकप्रिय सेंस में लिया जाना चाहिए, जैसे कि वो रोजमर्रा में यूज होने वाला शब्द हो। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि बुक्स में भी, इवन बुक्स हैव बीन इंक्लूडेड, बुक्स को भी शामिल किया गया है प्लांट में, और इसलिए वाइडर मीनिंग दिया जाना चाहिए प्लांट शब्द को, सो एज टू गिव इंक्लूड दोज थिंग्स which the interpretation clause declares that they shall include। जो भी इंटरप्रिटेशन क्लॉज ने कहा इंक्लूड किया जाएगा, जो 43(3) वाला जो क्लॉज है उसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहा जा रहा है, तो जो चीज वहां लिखी वो तो शामिल होंगी। फर्दर इट इज टू बी स्टेटेड दैट सेक्शन 43 इटसेल्फ प्रोवाइड्स कि जब तक कि कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज ना रिक्वायर करे तो वर्ड प्लांट जो है उसको वाइडर मीनिंग दिया जाना चाहिए, एंड दिस वाइडर मीनिंग डज नॉट इंक्लूड बिल्डिंग, उसमें बिल्डिंग नहीं शामिल है। बट इन एनी केस, इवन फॉर द टाइम बीइंग, प्रिज्यूमिंग, अगर हम मान भी लें कि जजों के द्वारा बनाया गया जो मीनिंग है उसमें बिल्डिंग शामिल भी है कुछ परिस्थितियों में, तो जो कॉन्टेक्स्ट है सेक्शन 32 का, तो अगर हम सेक्शन 32 के कॉन्टेक्स्ट में मान भी लें कि बिल्डिंग शामिल है प्लांट में, तो ऐसा वाइडर मीनिंग जो है वो नहीं दिया जा सकता, और प्लांट में बिल्डिंग शामिल नहीं होगी जहां पर होटल बिजनेस चलाया जा रहा है या थिएटर बिल्डिंग है या फिर सिनेमा बिजनेस चलाया जा रहा है। और उसके बाद कोर्ट ने स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया था कि जो होटल का बिजनेस है वो एक बिल्डिंग या प्रेमाइस को अडेप्ट करके चलाया जाता है सूटेबल तरीके से, जिससे वो रेजिडेंशियल होटल में यूज हो, तो बेसिकली वो एक बिल्डिंग ही है। ये सब ऑब्जर्वेशंस जो ऊपर वाले केस में थे ये क्लियरली इंडिकेट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि जो होटल का बिजनेस है वो चलाया जाता है एक ऐसी बिल्डिंग में या प्रीमाइस में, और बिल्डिंग एक apparatus नहीं है बिजनेस को चलाने का। ये एक आसरा है या एक घर है बिजनेस को चलाने का। और लंदन काउंसिल ने पॉइंट आउट किया और भी डिसीजंस में, जहां पर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि ताजमहल होटल वाले केस में, इवन आफ्टर नोटिसिंग द फैक्ट दैट द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ प्लांट इंक्लूड्स द बिल्डिंग, ये बात देखने के बावजूद भी कि जो डिक्शनरियों में मीनिंग लिखा हुआ प्लांट शब्द का उसमें बिल्डिंग हो सकती है, कोर्ट डिड नॉट प्रोसीड टू होल्ड, कोर्ट ने आगे होल्ड नहीं किया कि बिल्डिंग जिसमें कि होटल चलाया जा रहा था या जिसमें सैनिटरी फिटिंग यूज की जा रही थी वो बिल्डिंग खुद भी ये प्लांट था, ऐसा होल्ड नहीं किया।
एंड ऑन दैट ग्राउंड सैनिटरी फिटिंग जो कि होटल में यूज की गई थी वो पार्ट हो सकती है प्लांट के। एंड उन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो सेक्शन स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कि बिल्डिंग जो होटल की तरह यूज की जाती हैं would indicate hotel building cannot be construed as a plant, कि होटल बिल्डिंग को प्लांट नहीं माना जाएगा। और मद्रास हाई कोर्ट ने ये जब व्यू दिया इस केस में CIT वर्सेस सैंथेनम में, उसके बाद इसको सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि नेक्स्ट इट इज टू बी स्टेटेड दैट द जजमेंट इन द केस ऑफ बार्कले would be of no assistance for holding that a building used for the purpose of hotel or theater used for carrying the business of cinema will be a plant, because in the said case majority view was that the dry dock was not the mere setting of the premises. बार्कले एंड कर्ल कंपनी से भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां पर भी ये कहा गया था कि ड्राई डॉक जो है वो कोई महज सेटिंग या प्रीमाइसेस नहीं है जिसमें शिप रिपेयर किए जाते हैं, वो कोई महज शेल्टर नहीं है या कोई घर नहीं है, लेकिन खुद भी एक एसेंशियल पार्ट प्ले करता है ऑपरेशंस में, जो कि हो रहे थे शिप को डॉक में लाने में, शिप को सिक्योरली होल्ड करने में और वापस रिवर में पहुंचाने। तो ड्राई डॉक एक कंप्लीट यूनिट था बाय इटसेल्फ, और इसलिए ड्राई डॉक एक प्लांट था, क्योंकि बार्कले कर्ले में कहा गया। और इसके खिलाफ एक होटल प्रीमाइसेस के लिए एक्ट में बिल्डिंग को नहीं माना गया है कि वो कोई ऑपरेटस हो। बिल्डिंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन ऑपरेटस होटल बिजनेस को चलाने के लिए, बल्कि वो एक महज एक शेल्टर है, एक घर है, एक सेटिंग है जिसमें बिजनेस चलाया जा रहा है। हमारे व्यू में वही पोजीशन रहेगी थिएटर के हिसाब के लिए भी, जिसमें सिनेमा का बिजनेस चलाया जा रहा है। अगर वेबस्टर की डिक्शनरी को देखें तो थिएटर वर्ड को उन्होंने डिफाइन किया है कि थिएटर एक बिल्डिंग है जो कि अडाप्ट की जाती है, जिसको बदला जाता है ड्रामेटिक, ऑपरेटिक या स्पेक्टेकुलर रिप्रेजेंटेशंस के लिए, जहाँ पर ड्रामा, ओपेरा या देखने लायक चीज़ें प्रस्तुत की जा सकें एक प्ले हाउस के रूप में। जो थिएटर की दुनिया है और हर चीज़ से जो रिलेटेड है वो है थिएटर में। थिएटर एक रूम है, एक हॉल है जिसमें कि सीटें लगी हुई हैं, जिसको अडाप्ट किया गया लेक्चर्स के लिए, सर्जिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए। थिएटर कोई एक सेमी सर्कुलर फॉर्म है सीट्स का, जो कि धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही हैं। थिएटर कोई भी ऐसी जगह है या रीजन है या कोई सीन ऑफ इवेंट्स है। जो थिएटर है वो वॉर ऑपरेशंस का थिएटर भी हो सकता है, और इसका मतलब ये है कि सिनेमा का जो बिजनेस है वो एक प्रीमाइस में चलाया जा सकता है जिसको अडेप्ट किया गया है उस पर्पस के लिए, विच मे और मे नॉट बी स्पेशली डिजाइंड, जिसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसका डिजाइन भी स्पेशल हो। और उसके बाद अगर हम जो टेस्ट ले डाउन किया गया था बार्कले कर्ल एंड कंपनी में उसको लगाते हैं, तो जो टेस्ट लगाते हैं बार्कले कर्ल एंड कंपनी का, तो ये जो बिल्डिंग है प्रीमाइसेस है वो ऐसी जगह होगी जिसमें कि ऑपरेशन जो है बिजनेस चलाने का वो होता है, और वो नहीं जो कि जिसके द्वारा ऑपरेशन होता है। इट इज नॉट द मीन्स, बिल्डिंग इज नॉट द मीन्स बाय विच द ऑपरेशन इज परफॉर्म इन ए होटल बिजनेस। इट इज जस्ट अ premises in which the business is taking place। एक बिल्डिंग जिसके अंदर बिजनेस हो रहा है, बिल्डिंग खुद बिल्डिंग के द्वारा बिजनेस नहीं हो रहा है। इवन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन द केस ऑफ बेंसन अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट अ शिप, हाउस ऑफ लॉर्ड भी कंक्लूजन पे आए थे कि एक शिप या फ्लोटिंग हल्क जो होता है, जो फ्लोट कर रहा है शिप की बॉडी, जिसको रेस्टोरेंट के लिए यूज किया जाता है, वो भी प्लांट नहीं है। भले ही वो शिप जो है उसका इस्तेमाल एक शिप में होने वाली फीलिंग को क्रिएट करने के लिए किया गया हो और एक तरह का एटमॉस्फेयर बनाया गया हो जजमानों के लिए। हमारा व्यू ये है कि ऐसी बिल्डिंगें जो होती हैं उनको टूल नहीं कहा जा सकता बिजनेस को चलाने के लिए, और वो महज एक शेल्टर हैं बिजनेस की एक्टिविटीज को चलाने के लिए। और इसलिए अगर हम फंक्शनल टेस्ट भी लगाते हैं जो बार्कले कर्ल कंपनी में लिखा हुआ था, तो भी हम ये पाते हैं कि वो फंक्शनल टेस्ट
होटल बिल्डिंग से सेटिस्फाई नहीं होता। अब इंग्लैंड में भी कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस हैं इस क्वेश्चन पे कि जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट होगा कि नहीं होगा, और ये कहा गया इंग्लैंड में भी कि हर केस जो है उसको अपने फैक्ट्स पे डिसाइड होना है। ईच केस इज रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड ऑन द फैक्ट्स ऑफ दैट केस। जैसे कमिश्नर ऑफ इंलैंड रेवेन्यू वाले स्कॉटिश केस में कोर्ट ऑफ अपील ने ऑब्जर्व किया था कि हालांकि देयर इज नो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ द प्लांट, सेक्शन 41 के पर्पज से कई केसेस से जो डिसाइड हुए हैं एक निम्नलिखित सिद्धांत उभर के आते हैं जो कि सेटल लॉ बन गया है। और सिद्धांत क्या है? 1, समथिंग विच इज properly to be regarded as part of the setting in which a business is carried on, not as part of the apparatus used for carrying on the business, is not plant. कोई भी ऐसी चीज जो कि सेटिंग है और एपरेटस नहीं है वो प्लांट नहीं है। दूसरा सिद्धांत, कोई ऐसी चीज जो कि सेटिंग का पार्ट है एक ट्रेड की, वो प्लांट हो सकता है अगर इफ इट इज मोर अ पार्ट ऑफ द एपरेटस, अगर वो एपरेटस का पार्ट ज्यादा है सेटिंग के मुकाबले में। जो शब्द है प्लांट, उसमें वो परमानेंट स्ट्रक्चर बिल्डिंग का शामिल नहीं होगा जिसमें बिजनेस चलाया जा रहा है। चौथी बात, समथिंग विच इज अ स्ट्रक्चर और पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर मे नेवरदलेस बी प्लांट। कोई अगर स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर का पार्ट है वो प्लांट हो सकता है अगर वो फंक्शन को फुलफिल करे, जो खुद उस फंक्शन को फुलफिल करे जो ट्रेडर कर रहा है। कोई ऐसा ऑपरेटर्स जिसका कोई फंक्शनल पर्पस ना हो कमर्शियल प्रोसेस में, भले ही वो कुछ काम के लिए यूज हो रहा है लेकिन वो प्लांट नहीं है। वो कस्टम रीति है कि भी उसको लगाना जरूरी है, लेकिन वो ऑपरेटर्स भी प्लांट नहीं है अगर उसका कोई फंक्शनल पर्पस नहीं है, उसका अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा। प्लांट का फंक्शन भी होना चाहिए। इन दिस केस द apparatus इन क्वेश्चन वाज अ कैनोपी। इस केस में जो apparatus था वो एक कवर था, कैनोपी थी, जो कि पंप्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट की गई थी। कैनोपी एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है या पार्ट परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, जो कि पंप जो थे पेट्रोल फिलिंग स्टेशन पे ऊपर जो कैनोपी लगी होती है उनको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, जबकि कमर्शियल प्रोसेस फ्यूल डिलीवर करने का चलाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा ये जो कैनोपी है इसका कोई फंक्शनल पर्पस नहीं है, लगी हुई है वो तो बस, तो वो कोई प्लांट नहीं है। कैनोपी इज नॉट ए प्लांट, जो कि पेट्रोल पंप के ऊपर कवर होता है। और इस केस में लॉर्ड स्टॉट ने डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया था और उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन पे रिलाई किया कि जो प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इट इज एडजंक्ट टू द कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस। प्लांट जो है बिजनेस के चलाए जाने से जुड़ा होता है और वो कोई साइट नहीं होता, जगह नहीं होती जहां पर बिजनेस चलाया जा रहा है, या बिजनेस का कोर नहीं होता, बिजनेस का सेंटर नहीं होता, या साइट नहीं होता जहां पे चलाया जा रहा है, लेकिन बिजनेस से जुड़ा होता है। और इस अगर कैरेक्टरिस्टिक को अप्लाई किया जाए हमारे व्यू में, तो बिल्डिंग जो है होटल या सिनेमा की, उसको भी हम एडजंक्ट नहीं मान सकते हैं कि जो बिजनेस से बिल्कुल पक्का जुड़ा है उसके बिना वो बिजनेस नहीं चलेगा। होटल उसके बिना नहीं चलाया जा सकता है, उसके अंदर होटल के अंदर बिजनेस चल रहा है। दैट इज टू से, एज पर द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड एडजंक्ट, समथिंग एडेड टू अनदर, कोई चीज उससे जुड़ी नहीं है बिजनेस, और इट इज इन ए सबऑर्डिनेट, ऑक्सिलरी और डिपेंडेंट पोजीशन। बिजनेस से पूरा जुड़ाव होटल बिल्डिंग का एकदम ऐसा नहीं है कि उसी की वजह से चल रही हो बिजनेस। वो एक बिल्डिंग है जिसके अंदर बिजनेस चल रहा है, क्योंकि होटल में हम गेस्ट रिसीव करते हैं, ठहराते हैं, उनको भेज देते हैं। बिल्डिंग तो चाहिए कोई भी काम करने के लिए, तो इट इज अ बिल्डिंग। फर्दर इन विम्पी इंटरनेशनल वर्सेस वॉरलैंड, कोर्ट ऑफ अपील ने डील किया था केस के साथ जहां पे अपीलेंट्स के पास फास्ट फूड रेस्टोरेंट थे और वो उसने पैसा खर्चा किया था उनको इम्प्रूव करने में, मॉडर्नाइज करने में रेस्टोरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने शॉप के फ्रंट पे खर्चा किया, फ्लोर वॉल टाइल ठीक किए,
वॉल की फिनिश बेटर की, दूसरे जो नॉन डेकोरेटिव आइटम्स थे उनको ठीक किया। तो इसको होल्ड किया गया कि ये सब जो है सेटिंग या प्रीमाइस है जिसमें कि ट्रेड चलाया जा रहा है। एप्लेंट्स ने कंटेंट किया था कि जो सारे आइटम्स हैं ये इंस्टॉल किए गए थे जिससे कि एम्बियंस हम ठीक कर सकें रेस्टोरेंट का और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें, और इसलिए वो प्लांट होना चाहिए। कोर्ट ने होल्ड किया नहीं, वो प्लांट नहीं है। कोर्ट ने हर आइटम को उठाया, डेकोरेशन के सेपरेटली उठाया, उसको एनालाइज किया कि यदि वो प्लांट है कि नहीं है, जैसे शॉप फ्रंट या डोर। और कोर्ट ने एग्री किया चांसरी डिवीजन के ओपिनियन से कि कोई भी जो शॉप फ्रंट या डोर है वो प्लांट के रूप में क्वालिफाई नहीं करता है, ये होल्ड करके कि उनका जो मुख्य फंक्शन है शॉप फ्रंट या डोर का, मुख्य फंक्शन ये है कि प्रेमाइस का वो नेसेसरी पार्ट है, और डोर्स का इस्तेमाल अंदर जाने और बाहर आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से फ्लोर या वॉल टाइल जो है वो भी प्लांट नहीं हो सकते। इसलिए चूज किया जाता है कि अट्रैक्टिव सेटिंग वो भी एक सेटिंग का पार्ट है जिसमें कस्टमर खुश होते हैं बैठने में कुछ देर के लिए, जितने टाइम के लिए रिक्वायर्ड उनको खाना खाने के लिए, फास्ट फूड खाने के लिए। लेकिन उसका जो फंक्शन है उसके बियॉन्ड नहीं जाता, केवल सेटिंग का फंक्शन है, केवल प्रीमाइस वाला फंक्शन है। और उसके बाद जज फॉक्स ने कहा कि कंसिडरिंग द फैक्ट्स ऑफ दिस केस एंड वेरियस डिसीजंस इन द लाइट ऑफ द अथॉरिटीज, द पोजीशन अपीयर्स टू मी टू बी दिस, दैट there is a well-established distinction in general terms between a premise in which the business is carried on, एक फर्क है उस प्रीमाइस में जिसमें बिजनेस चलाया जा रहा है और एक प्लांट में जिसके साथ बिजनेस चलाया जा रहा है। प्रीमाइस और प्लांट में फर्क है कि प्रीमाइस जिसमें बिजनेस चलाया जा रहा है, प्लांट विथ विच जिससे बिजनेस चलाया जा रहा है। प्रीमाइस आर नॉट प्लांट। अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में जो कि इलस्ट्रेट किया गया लॉर्ड डोरिस के एग्जाम्पल के द्वारा, कि एक एटमोसफेयर जो क्रिएट किया जाता है ब्यूटीफुल बिल्डिंग बना के, गार्डन्स बना के, बढ़िया चाइना के बर्तन, ग्लास के बर्तन, टेबल वेयर लगा के, तो द लैटर आर प्लांट। यानी कि जो फाइन चाइना, ग्लास और टेबल वेयर है वो प्लांट है, लेकिन जो बिल्डिंग है या गार्डन है वो नहीं है। द फॉर्मर आर सिंपली द प्रीमाइसेस, और पहले वाले यानी जो बिल्डिंग और गार्डन है वो प्रीमाइसेस है जिसमें बिजनेस चलाया जा रहा है। द डिस्टिंक्शन हाउएवर नीड्स टू बी इलैबोरेटेड for present purposes by reference to Lord Lowry's further formulation। जो प्लांट और बिल्डिंग के बीच का जो फर्क है उसको और ज़्यादा विस्तृत रूप से इलेबोरेट करना ज़रूरी है। उसके लिए लॉर्ड लॉरी का जो फर्दर फॉर्मुलेशन है वो कहा जाएगा, लिखा जाएगा कि द फैक्ट दैट डिफरेंट थिंग्स में परफॉर्म द सेम फंक्शन, हो सकता है अलग चीज़ें अलग अलग चीज़ें एक ही फंक्शन कर रही हूँ, कि भाई एटमोसफेयर क्रिएट करना है, वो बात उतनी रेलिवेंट नहीं है। वन थिंग मे फंक्शन एज पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस, एक चीज जो है वो प्रीमाइसेस का पार्ट हो सकती है और दूसरी चीज जो है प्लांट का पार्ट हो सकती है। और इसलिए कोई ऐसी चीज जो कि प्रीमाइस का पार्ट है, इंस्टेड ऑफ मेरली एम्बेलिशिंग देम, केवल उनको सजाने के अलावा केवल उसका पार्ट है, तो वो प्लांट नहीं हो सकता, एक्सेप्ट इन रेयर केसेस जहां पर प्रेमाइस ही खुद ही प्लांट हो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आई डू नॉट थिंक दैट वट एवर ऑलिवर जे वॉज सेइंग इन कोल ब्रदर्स दैट वेरियंस विद लॉर्ड डॉरीज अप्रोच, दोनों की अप्रोच एक ही है। इट इज प्रॉपर टू कंसिडर द फंक्शन ऑफ द आइटम इन डिस्प्यूट, फंक्शन को कंसिडर करना जरूरी है, बट द क्वेश्चन इज व्हाट डज इट फंक्शन एज, किस तरह से वो फंक्शन कर रहा है। क्योंकि वो प्रेमाइस की तरह फंक्शन कर रहा है तो प्लांट नहीं है। फैक्ट कि वो बिल्डिंग, इसमें बिजनेस चलाया जा रहा है, वो बिल्डिंग पर्टिकुलरली सूटेड है उस बिजनेस के लिए, वो बात तो ठीक है, या वाकई में वो स्पेशली बनाई गई है उस बिजनेस के लिए, वो भी ठीक है, लेकिन उससे वो प्लांट नहीं हो जाता। भले ही वो वेल सूटेड है बिजनेस के लिए, भले ही उस बिजनेस के लिए बनाई गई है वो बिल्डिंग, खास तौर पे डिजाइन करके बनाई गई है, लेकिन उससे भी वो प्लांट नहीं हो जाता, वो बिल्डिंग रहती है। उसकी जो सूटेबिलिटी है वो सिंपली वही कारण है
why the business is carried on there. But it remains the place in which the business is carried on. वो उसका जो कैरेक्टर है वो ये है कि वो एक प्लेस है जिसमें बिजनेस चलाया जा रहा है, और वो ऐसी चीज नहीं है जिससे बिजनेस चलाया जा रहा हो. और इसी तरह से लॉर्ड हॉफमैन ने कहा चांसरी डिवीजन केस में कि क्वेश्चन इज वेदर इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब द आइटम एज पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस रादर देन रिटेन द सेपरेट आइडेंटिटी. क्या हम उसको प्रीमाइस मान सकते हैं या उसकी आइडेंटिटी अलग है? इट सीम्स टू मी दैट जो फिक्स फ्लोर टाइल्स हैं या शॉप फ्रंट हैं वो हाउस कर रहे हैं बिजनेस को. वो महज एम्बेलिशमेंट या डेकोरेशन नहीं है, वो बिजनेस को ही हाउस कर रहे हैं. और इसी तरह से कुछ और भी जजमेंट्स थे जिनको कि जो ब्रिटिश जजमेंट्स को कंसिडर किया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. और फिर उन्होंने कहा कि टू रिलाई अपॉन बार्कले एंड कर्ल एंड कंपनीज केस एंड टू होल्ड दैट होटल बिल्डिंग और थिएटर वुड बी ए प्लांट ऑन फंक्शनल टेस्ट वुड बी अनजस्टिफाइड. और उसको प्लांट होल्ड करना अनजस्टिफाइड होगा बिल्डिंग को और अनरीजनेबल होगा सेक्शन 32 के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे हमको कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है. क्योंकि सेक्शन 32 डील करता है डेप्रिसिएशन के ग्रांट से, और एज अगेंस्ट दैट जो ऊपर दिए गए डिसीजन कोर्ट के इंग्लैंड के वो सेक्शन 41 पर बेस्ड है, फाइनेंस एक्ट 1971 के उनके, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलाउ कर रहा है. तो उनका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा फर्क भी हो सकता है जहां पर उन्होंने कोई डिफरेंट डिसीजन लिया हो. हमारा कॉन्टेक्स्ट सेक्शन 32 का है, तो हमें अपने कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना है. इवन देयर एज कोटेड अबव द कोर्ट्स हैव स्पेशली हेल्ड दैट क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर इन अ होटल बाय ब्यूटीफुल बिल्डिंग, अगर ब्यूटीफुल बिल्डिंग भी बनाई जाती है, गार्डन बनाए जाते हैं, उससे वो बिल्डिंग प्लांट नहीं बन जाएगी. तो सुंदर बिल्डिंग बनाने से वो बिल्डिंग प्लांट नहीं हो जाएगी. उस बिल्डिंग की सूटेबिलिटी जो है कि वो बिल्डिंग सूटेबल है, वही कारण है कि बिजनेस वहां पे चलाया जा रहा है. लेकिन प्रीमाइस प्रीमाइस रहती है. प्रीमाइस रिमेन्स अ प्रीमाइस जहां पर बिजनेस चलाया जा रहा है, और भले ही वो बनाई गई हो. और so we are left with I think another 4 pages. मैं इसको जल्दी नहीं करना चाहता हूँ. What I'll do is I'll continue in the next lecture at 2:15 and we'll finish it, and then we will start another case law in the next lecture. So it will take about another 10 minutes to complete this case law, and then we go to the next one. क्योंकि जो conclusion वाला part है, we should not miss it. So we come to the end of this lecture right now, and there will be another lecture at 2:15. We'll start at 2:15. Please come at 2 o'clock.